Good morning, Standard 10. Today we are going to read our supplementary English book, and its name is Footprint Without Feet. So in this book, today we are going to read our chapter 2. So as we all know that we are reading chapter 2, The Thief's Story. In our last video, we have discussed about how Anil was make friend with the boy. हाउ थीफ एंड अनिल बिकेम फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले अपने कहानी में पढ़ रहे थे कि क्या ये जो कहानी है ये थीफ्स स्टोरी कहानी है। इसमें एक जो चोर होता है वो अनिल को कैसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला फुसलाकर उससे दोस्ती कर लेता है और उसके घर रहने चला जाता है। मेन उसका मोटो होता है उसको रॉब करना, उसे घर चोरी करना। तो आइए अब कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस कहानी में आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and on the bed. I stepped on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the window. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. I had more marks on my face, though mine were mostly scars. Sorry, students. My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil signed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an old rich Arab for a week or two. Now we will understand the meaning of this paragraph. So here it is. अनिल सोया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश की किरणें छज्जे से ऊपर होकर बिस्तर पर पड़ रही थीं। हालात का जायजा लेते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। यदि मैं पैसे ले लेता तो 10:30 की लखनऊ जाने वाली ट्रेन को पकड़ सकता था। कंबल से बाहर निकलते हुए मैं रेंगता हुआ बिस्तर तक गया। अनिल शांति से सो रहा था। उसका चेहरा स्वच्छ और बगैर झुर्रियों के था। यद्यपि मेरे चेहरे पर अधिक निशान थे, पर इनसे मैं मेरे चेहरे पर अधिकतर निशान घावों के थे। मेरा हाथ नोटों की तलाश में गद्दे के नीचे चला गया। जब मुझे नोट मिल गए, मैं बिना आवाज़ किए उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल ने अपनी नींद में आह भरी और मेरी तरफ करवट फेर ली। मैं चौंक गया और शीघ्रता से रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं सड़क पर आया तो मैंने दौड़ना शुरू किया और नोटों को अपनी कमर के पैजामे के नाड़े से बांध लिया। मैंने अपनी गति धीमी की और सामान्य चाल से चलने लगा और नोटों को गिना। 50-50 के नोट थे। में कुल 600 रुपये थे। 1 या 2 सप्ताह तक मैं धनी अपने आप को महसूस कर सकता था, जैसे कि एक अरब का व्यापारी होता है। Now moving on to the next paragraph, students. When I reached the station, I did not stop at the ticket office, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. When the train had gone, I found myself standing alone the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make any curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. In my short career as a thief, I made a study of men's face when they had lost their goods.
The greedy man showed fear. The rich man showed anger. The poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but also for the law, but also for the trust. I found myself in the Maidan and sat down on the bench. The night was chilly. It was early November, and the light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and the cold wind blew the rain across my face. Now its meaning, students. So जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, यानी जब चोर कह रहा है कि जब वो स्टेशन पे पहुंचा तो मैं टिकट मैं टिकट घर के पास नहीं रुका, बल्कि मैं एकदम सीधे प्लेटफॉर्म पर चला गया। लखनऊ एक्सप्रेस उस समय जा रही थी। गाड़ी अभी भी अपनी गति को पकड़ने वाली थी और मैं किसी भी डब्बे में चढ़ सकता था, परंतु कुछ सोचकर मैं हिचक गया और रुक गया, जिस कारण से मैं भाग नहीं सका और मैंने ट्रेन पर चढ़ने का मौका खो दिया। जब गाड़ी चली गई तो मैंने स्वयं को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि रात कहाँ बिताऊं। मेरा कोई मित्र नहीं था, क्योंकि मेरा विश्वास था कि मित्र सहायता से अधिक परेशानी पैदा करते हैं, और मैं स्टेशन के नज़दीक किसी छोटे से होटल में ठहरकर किसी के मन में कोई जिज्ञासा पैदा नहीं करना चाहता था। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं ढंग से जानता था वह वही था जिसे मैं अभी लूट कर आया था। स्टेशन को छोड़ता हुआ मैं धीरे धीरे बाजार में घूमने लगा। चोरी के अपने छोटे से जीवन काल में मैंने इंसानों के चेहरों का अध्ययन बखूबी किया था। जब वे अपना सामान खो देते हैं तो वे कैसे दिखते हैं। लालची आदमी में उसे भय दिखता था। अमीर आदमी में उसे गुस्सा दिखता था, जबकि गरीब आदमी में स्वीकृति दिखती थी। वो एक्सेप्टेंस दिखता था कि हाँ चलो, मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम मुझे लूट ही लो, मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था। जब उसे चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर सिर्फ उदासी के भाव आएंगे, लेकिन पैसों के नुकसान के कारण नहीं, बल्कि भरोसा टूटने के कारण। मैं स्वयं को मैदान में पाया था और एक बेंच पर बैठ गया। रात बहुत सर्द थी, क्योंकि नवंबर की वो रात थी और हल्की बूंदाबांदी भी होनी शुरू हो गई थी, जिसने मेरी परेशानी को बढ़ा दिया। शीघ्र ही तेज बरसात होने लगी और मेरी शर्ट और मेरा पैजामा मेरे बदन से चिपक गया, और ठंडी हवाएं के झोंके ने बरसात की बूंदों को मेरे चेहरे पर फेंक दिया। यानी कि पहले तो बारिश हुई, और बारिश होने के साथ साथ फिर क्या है, ठंडी हवाएं भी बहने लगे। Now third paragraph, students. I went back to the bazaar and sat down to the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were dumped from the rain. Anil's money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar, or learn to write whole sentence anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentence, I knew, could one day brings me more than a few hundred rupees. It was a simple matter of steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. उसके बाद आगे क्या होता है बच्चे? मैं वापस बाजार चला गया
और घंटा घर की छाया के नीचे बैठ गया। वो वापस बाजार चला गया, यानी स्टेशन से होते हुए मैदान आया, मैदान से फिर वापस वो बाजार चला गया और वहाँ पे एक घंटा घर था, उसकी शेड में वो बैठ गया। घड़ी में आधी रात का समय हो रहा था और उस वक्त उसने नोटों को छुआ। वो बारिश के पानी से बिल्कुल गीले हो चुके थे। अनिल का पैसा, यह अनिल का पैसा है। शायद सुबह होने पर वह मुझे सिनेमा देखने के लिए इसमें से 2 या 3 रुपए दे देता, लेकिन अब ये सारे के सारे मेरे पास है और ये मेरा धन है। मैं उसका भोजन नहीं पका सका, भागकर बाजार ना जा सका और ना ही पूरे वाक्य लिखना सीख सका। यानी चोर को यहाँ पर आत्मग्लानि महसूस हो रही है कि उसने चोरी तो कर लिया, लेकिन जो व्यक्ति अनिल जो उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा था वो पूरा पढ़ लिख नहीं सका। चोरी की उत्तेजना में मैं इनके बारे में बिल्कुल ही भूल चुका था। मैं जानता था कि पूरे वाक्य मुझे किसी दिन कुछ 100 से अधिक कहीं धन ला के दे सकते हैं। चोरी करना बहुत ही सरल कार्य था और कभी कभी तो पकड़ा जाना इससे भी आसान होता था। परंतु वास्तव में एक बड़ा आदमी बनने और एक चालाक और इज्जतदार आदमी बनने के लिए कुछ और ही करना चाहिए था। मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए। मैंने स्वयं से कहा, यदि मैं पढ़ना और लिखना चाहता हूँ तो इसके बाद क्या होता है कि वो जो चोर होता है, मैं आप समअप कर देता हूँ स्टोरी को, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो चोर होता है वो उसको रिग्रेट फील होता है, उसको आत्मग्लानि महसूस फील होने लगती है। उसके बाद वो भागकर फिर वापस अनिल के घर चला जाता है और फिर घबराते हुए उसी जगह पर उसके नोटों को वापस रख देता है जहाँ से उसने वो पैसे को निकाला था। फिर अगली सुबह होती है और अनिल उसे उसी गीली हुई नोटों में से पैसे निकाल कर उसे देता है कि जाओ जाकर सामान ले आओ। और उसके बाद आज हम लोग एक पूरा वाक्य लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर ये कहानी आपकी ख़त्म होती है। बहुत ही अच्छी कहानी थी ये, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई और काफ़ी फेमस स्टोरी भी है। सो आज हम लोगों ने अपनी इस कहानी को एंड कर लिया है। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। और बाय द वे इसका एक रिवीजन वीडियो और कहानी का समरी मैं आपको सेकंड वीडियो में, जो इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। टिल नाउ, बाय फॉर नाउ।